fresh element होता है. So how do you come up with the fresh element? और इस साल क्या होगा? So basically, Amna, I think what you have is 4 different genres in Lakstyle Awards, and because you have 4 different genres of entertainment, things evolve and change every year. Right. Sometimes music is big, sometimes fashion is big, sometimes film. Film to as you know, when we started was so dead, and now it's kind of had this huge revival. I remember a couple of years there were no films. There's no films. Yeah. Like you couldn't figure out 3 films. एक ही nominate हो गई थी एक साल में, मुझे ये भी याद है कि nominate भी नहीं, I mean एक ही थी. So I mean you didn't have films. Yeah. And now, so there's a lot of excitement always in the entertainment industry. Plus, I think our dramas are huge. Yeah. I mean, and what's happened in the 18 years is that we didn't have social media like we have in the last 5 years or Yeah. so, let's be honest. So that's taken over, and you have a new generation. So what we call the centennials, which are just born with the phone in the hand, and the millennials, which are now aging to 30, 35. But that generation is very vocal. Yeah. They create the virality. They are the ones who are creating all the entertainment information. I'm not saying that the older generation is not doing their part, but I think that's where the freshness comes in. But as show director, how do you keep them engaged? So you keep them engaged because you give them exactly what you want. And obviously this whole thing that we're doing right now is part of it, right? Yeah. It's going on digital. So the idea is to create the hype, to create the buzz, to create the virality. This is what we're going to do with the show. And I think that was my brief from the client. Right. Keep it young, keep it digital. Right. And but also don't lose the essence, which is glamour and style. Right. And also there's so many elements to it, because Right. this is also again a show which is not just इंग्लिश मीडियम लोगों के लिए जो कि इधर बैठे हैं डिफेंस और क्लिफ्टन में, ये सबके लिए जो गांव में भी बैठे हैं उनको भी एंटरटेन करना है. उनको क्या अच्छा लगता है, उनके लिए क्या होना चाहिए. और इस साल उनको क्या अच्छा लग रहा है? इन साल उनको What does your research tell you? My research tells me कि जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है यंग जनरेशन से भी, वैसे भी हमारी जो कौम है वैसे भी they are in love with emotion. Yeah. Okay, we are very emotional people, and we're still emotional. We're not getting over it. So हमें एक तो रोना धोना भी पसंद है, ट्रेजेडी भी पसंद है, हमें रोमांस भी पसंद है, हमें आइटम भी पसंद है, हमें इस तरह की चीज़ें और खूबसूरती भी पसंद है. मगर जो दूसरी जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, वो खूबसूरती को भी क्वेश्चन करती है, हर चीज़ को क्वेश्चन करती है, which is so nice. So एक बैलेंस बड़ा अच्छा आ जाता है. But you mentioned something in particular about love. Love. So love इस साल मेरे ख्याल में, and this actually happened to me yesterday कि मैं बैठी हुई थी, मैं सोची, मैंने कहा ये तो पूरा शो ही लव है. So it's all about love. I think एक चीज़ जो बहुत चेंज हुई है और सोसाइटी के अंदर 18 साल से, वो ये है कि पहले अगर कोई लड़का लड़की साथ होते थे वो छुपे ढके रहते थे. Yeah. I think बहुत सारी जब उनकी शादी हो जाती थी, फिर पता चलता था, शेख की शादी हुई, फिर पता चला कि जी अच्छा शादी कर हाँ, ली है. बिकॉज ये सोसाइटी और इनसे डरना और ये सब अब वो वाली बात नहीं रही है. अब अगर रोमांस हो रहा है हमारे सेलिब्रिटीज में भी, तो वो बहुत ओपन है उसके बारे में, और वो कहते हैं कि जी इसमें क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या वाली बात होगी. And we have so many great couples. I mean, अभी सज्जल और राहत की engagement announce हुई है. Then we have Hani and Asim who are very open. और इन सब की जो शादियां भी हो रही हैं, वायरल होती जा रही हैं. बिकॉज हमारी कौम को शादियां भी बहुत पसंद है. हमें उर्वा और फरहान की शादी वायरल हुई, उसके बाद और फिर वो जो दोनों बहनें थी, क्या नाम है, एमन और उसकी जो मुनीब की, वो भी वो सारी बात. सो आई थिंक ये इन चीज़ों का हमारी कौम को शौक है, हमारी लड़कियों को लड़कों को. दे वांट टू सी ऑल ऑफ दिस. वी लव म्यूजिक. राइट. म्यूजिक हर चीज़ में, फैशन में, फिल्म में. एब्सोल्युटली. आप जाके देखें ना म्यूजिक की कैटेगरीज में, अब OSTs सुनो चंदा जैसे गाने हर जगह वो फेमस हो रहे हैं. सो दिस इज समथिंग that we decided, I mean I decided that this is what's happening. और सिर्फ रिलेशनशिप्स में लड़का लड़की नहीं आ जाते. हमारे साउथ एशियन कल्चर के अंदर जो यार है आपका, जो दोस्त है, बडी है, वो हमेशा रहेगा. वो वैसे वहाँ से चला आ रहा है शोले के जमाने से. धर्मवीर हो गया, कोई भी हो गया, वो दो लड़के और उनकी दोस्ती और वो मर मिटने वाली जो दोस्ती होती है वो चलती रहती है. चड्डी बड्डी. हाँ, मगर इस वक्त ज्यादा हो गया है, बिकॉज अब लोग कहते हैं कि जी लड़कियां लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ गया है. एंड आई थिंक इवन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलसियाँ होती थी पहले ज़माने में और जलन कोड़न से लोग मर रहे होते थे, अब
अगर एक महविश हयात जीतती है उसको ट्रोल किया जाता तो मैं मायरा उसको सपोर्ट देती है. सो आई थिंक ये दिस इज द अंडरलाइंग थीम ऑफ द शो. इट्स अबाउट लव. That's great. Yeah. And it is our culture. Yeah. And I think it resonates in every part of the. Super. Yeah. So मुझे बताओ Priya, that so many different elements come together to make that one grand show. Right. And it's grand. I mean, एक दो साल थे बीच में when it went behind doors, studio shoot हो गया, या जब कुवैत में war announce हुई थी तो Exactly. went, you know, एक दो दफा हुआ, लेकिन फिर मलेशिया भी गया, दुबई भी गया, and there were experiences, right? And we witnessed all that grandeur. लेकिन it's not that simple. लोगों को ख्याल है कि जी एक स्टेज लग जाता है, उस पे performances होती हैं. Then tell us a little bit about the process. कि you know, show director तो आप हो. मैं तो पागल हो रही थी ना. मैं तो थोड़ी सी मुझे कहता है जैसे कि अखबारें मैं 7 अखबारें पढ़ती हूँ सुबह और मैं चीजें जमा करती रहती हूँ. पूरा साल मेरी फाइल भरी होती है जिसके पास मैं वापस जाती हूँ just to make sure that I have everything. And I'm constantly on social media, so I know exactly what's going on. मैं पढ़ती भी रहती हूँ बाहर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, मुझे पता होता है. और फिर मेरी दोस्तियाँ भी बहुत हैं एंटरटेनमेंट में. अगर इससे ज़्यादा ये कि आप यकीन करें, आई थिंक December 15th को मुझे इन्होंने बुलाया था और अब ऑलमोस्ट June 15th हो गई, तो 6 महीने इस शो पे मैं काम कर रही हूँ. मगर डायनामिक की बात करो, जैसे लाइटिंग है, म्यूजिक है, साउंड है, तो हर चीज, परफॉर्मेंसेस हैं, आर्टिस्ट हैं. आर्टिस्ट मैनेजमेंट कितना बड़ा चैलेंज होता है. एक बहुत बड़ा चैलेंज है. उसमें ये होता है कि भाई आपको पहले तो आपने निकालना होता है कि जी क्रक्स क्या है, जैसे कि हमने निकाल लिया. ठीक है कि भाई लव इज द एंड पहले आप रिसर्च बहुत होती है. फर्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उससे आपका शो निकलता है. पहले कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, उस कॉन्सेप्ट्स के अंदर से और क्लाइंट आपको बताता है कि ये ब्रीफ देता है, तो उसके ऊपर फिर हम चलते हैं. फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. फिर आपको देखना पड़ता है ना कि व्हाट्स हॉट, like something hot. So whatever's hot is what you got to put in. Okay. Yeah. And then you got to see something which is maybe, you know, maybe nobody knows. Yeah. And you make it hot. Yeah. So that's also your challenge. That's always fun. Yeah. To do that, That's that little breakthrough act is always fun. Yeah. I think hopefully like we will giving have Abid Rohi a stage. Yeah. To perform on. I mean, that was fantastic, right? Right. क्या Absolutely. performance थी वो. लेकिन उनके अलावा moments like, for example, मेरे favorite मैं कई दफा बोल चुकी हूँ, रेशमा and आतिफ असलम. Yeah. I mean, another moment. Saima and Shan, another moment. Yeah. Nazia Hassan. So maybe you want to ask your viewers, maybe the viewers can vote in and tell you कि इस साल जो लेजेंड अवार्ड है, जो कि हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है एंटरटेनमेंट में, किसको जा रहा है. आप गेस करें और आई थिंक आई एम श्योर हमने आपको गिफ्ट दे दीजिएगा. लक्स की तरफ से आपको टिकट्स देंगे. We'll take you to Lux. Yeah. Tell me, what are your favorite moments through the years? So my favorite moment is can I be honest? Yeah. मुझे मारिएगा नहीं. मेरी माँ मुझे कहती तू ये शो क्यों करती है, क्योंकि मैं पागल हो जाती हूँ, मैं गालियाँ दे रही होती हूँ, मेरी नींदें उड़ी होती हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, and it's so stressful. But I think last year was for me, because it was more social, somber. Right. It was very heartfelt for me. Right. It was very emotional, and it was a very good moment for me. That was a good show for me. Right. 2007 was a great show. 2005 was a great show. 7, you're talking about Expo, right? No, 2007 was Malaysia. Malaysia was great. I loved Malaysia. I thought Malaysia, you know, it had, because we were in a venue where we could do so many things, जो कि हमारी पाकिस्तान में बड़ी limitations होती हैं, हमें venue की limitations होती हैं, हम बहुत सारी चीजें कर नहीं पाते. वहाँ पे कोई गुम नहीं हो सकता था, वहाँ सब मौजूद थे. मुझे याद है 3 hotels interconnected थे और हर बंदा वहीं पाया जाता था. किसी को और सबकी मूड बड़ा अच्छा होता है क्योंकि सब छुट्टी पे होते हैं किस्म के, और मौसम अच्छा होता है और माहौल अच्छा होता है. So I think that makes it a little bit easier for you. And I remember that you guys even gave the guest coupons for massages. Right, exactly. तो सुबह मैं उठती तो एक कमरे से अली अज़मत निकल रहा होता था, रात को एक कमरे से शेरू निकल रहा होता था मसाज करा के. तो इट वाज लाइक फुल ऑन. हमें सबसे ज्यादा मजा तो उस वक्त आता था कि एक कमरे में हम लोग हर रोज अली अज़मत कमरे में पहुंचे होते थे. और वो एक और ही शो था क्योंकि वो तीनों the 3 A's अज़मत, अली ज़फर और आतिफ एक दूसरे के गाने गा रहे होते थे. I mean those are moments for me जो कि रिकॉर्ड भी नहीं हुए ना कभी वो सोशल मीडिया पे आ सकेंगे. Maybe that's what immortalizes them actually. That does, I think that's what it is, the moments like that. And of course जब आप अब बहुत सारे लोग हैं जो चले गए हैं, जैसे रूही बानो है और मेहदी हसन है, महनाज है, रेशमा, ये सब
उनको ऑनर कर दिया Yeah. एंड दैट मोमेंट यू नो जब रेशमा ने जब गाया और मैंने उनको कहा मैं आपको शो में नहीं डाल सकूंगी अगर आपने गाया नहीं, तो उन्होंने जब मैं पलट के गई आई थिंक थोड़े 2 मिनट के लिए बाहर कमरे से, पीछे से उन्होंने गाना शुरू कर दिया, मैं वापस भागी, मैं रोने लगी। I think वो जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, there was not a single dry eye in the audience. मुझे याद है सबकी आंखों में आंसू थे. Right. It was such a touching For moment. me वो पहले हो जाता है, हाँ. बिकॉज जब मैं उनको हाँ, of मिलती course, हूँ rehearsal और के वक्त उनसे पर. बात करती हूँ, या जैसे कि पहली बार आई थिंक नाहिद अख्तर एक स्टूडियो में गई हैं 20 साल के बाद गाना गाने, बच्चे उनके बैठे हुए हैं बाहर बेंच पे, और मैं खड़ी हूँ शुजा हैदर के साथ और मैं सुन रही हूँ और मैं उनकी इमोशन फील कर रही हूँ बिकॉज वो 20 साल के बाद खड़ी होकर माइक के ऊपर गा रही हैं। बिल्कुल। फॉर मी दैट मोमेंट इज इररिप्लेसेबल। So you know प्रिया, लेजेंड्स को ऑनर करना तो बड़ा एक इमोशनल मोमेंट होता है, बट वी नो कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, they're not so easy to manage. Yeah. So what is the biggest challenge in putting LSA together? Is it the celebrity? Is it the lights? Is it the sound? Is it the security? I mean क्या है? I think it's a lot, everything. मुझे तो हर चीज में एक चैलेंज मैं ये नहीं पूछूंगी सबसे ज्यादा मुश्किल सेलिब्रिटी कौन सा है. That would be fun to know. नहीं पूछ लो मुझसे, किसी ने उस दिन पूछा, पेप्सी वालों ने पूछा था, मैंने उनको बता दिया था कि सबसे मुश्किल सेलिब्रिटीज एक जमाने में, अब नहीं, लॉलीवुड की एक्ट्रेसें होती हैं, Right. ठीक है, हमें उनके अब तो करना नहीं पड़ता, लेकिन एक एक सेलिब्रिटी के पीछे हमने एक स्पाई लगाया हुआ था, शैडो. आई डोंट इवन थिंक दैट वुड बी लीगल नाउ. Priya, do you remember when one of them went missing with a lot of jewels in Dubai? Yes, I do remember. At night. And और वो ज्वेलर के साथ में पूरा होटल छान के उनको ढूंढ के उनके कमरे में पहुंची और वो ज्वेलरी उतरवाई, और फिर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, सो यू वो